Yeah, hi everyone. Uh, I have been waiting since last 5 minutes, but nobody is joining today, so not a big deal. Let's let's start today's lecture, and today we will see a brand new topic, and it's indeed an important topic. बहुत ही ज़्यादा helpful और you know high in demand topic है आज का, right? So without wasting even a single minute, let me share my screen. Just let me know if it is visible or not. Okay. So first of all, I'm sharing this PPT, which I'll be using during the session. Okay. Yes. So introduction to 4D simulation using Navisworks. Okay. Navisworks Indian context में तो at least I can say कि one of the most demanding tool है when it comes to coordination for dissimulation or class detection, right? At least I can say in Indian context. Uh, and Middle East maybe it is quite in demand, right? So today we'll see how we can do simulation, body simulation and nervous works, right? Then of course do's and don'ts of or you can say the etiquettes of attending online classes. This applies to all online classes or courses, right? Participation, tone or disturbance, okay, anything you want to eat or drink, keep aside. No spamming, relevant questions only, no other books. So this is the quick recap from the last session, which we have seen so far. In the last session, I discussed about class detection, which is another compelling feature of the Navisworks, right? And then we saw how to append the Navisworks files, cache files, okay. Then sorry friends, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो excuse me for that. Then we saw the class detective कहाँ पे होता है and how we perform the clashes basically, how we run the class tests. Okay, we performed class test as well, and we identify the number of clashes as well. 600 something clashes were there, and then we also saw the Navisworks switchback option. Okay, जब हम clashes identify करते हैं तो we need to identify those clashes into Revit so that we can rectify it. ठीक है ना? तो डायरेक्ट Navisworks से we can switch back to the Revit, वो भी हमने देखा था. फिर हमने ग्रुप किया था clashes को and then other options explore किए थे, and finally we exported, we generated a clash report. Now let's see what is inside today's menu. Okay, create search sets. Okay, how to create 4D simulation by auto attach method, import 4D time schedule, linking the schedule with the model, how to create custom search sets, how to create 4D simulation by manual method, exporting a 4D simulation, utilizing appearance profiler, right? These are the topics for today's session. And ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं बिकॉज आई बिलीव जो ये सर्च सेट वाला फर्स्ट ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा बाद में दूंगा या फिर एज पर दी रिक्वायरमेंट आई विल help you understand this, right? So let's start. Now, the very first thing is download the 4D simulation sample model, the resource file from group. Okay, open Navisworks. All right, go to Home tab, find items, and then this Home tab, manage sets. Okay, go to find item category, column, custom. Okay, files. Click on the bottom sets, window, search set, files similar to. Okay, all right. So this is the workflow how does need to perform the Excel action. ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली लेट मी टेक यू टू द Navisworks ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है. ठीक है, अभी बात हो रही थी कि हमें कुछ एक फाइल डाउनलोड करनी है. वो फाइल आपको
इट विल बी फाइल आपको कैसे मिलेगी, दोस्त हु आर यू नो watching on YouTube or at any other platform. So मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फाइल आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा या फिर ये फाइल उसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस दिस दिस सेशन, ठीक है। नो वरीज। तो ये फाइल है बेसिकली आपको डाउनलोड करनी है, मैंने आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, सो ये मेरे डाउनलोड पोर्शन में है एंड मैंने Navisworks ओपन कर लिया है। आई विल बी डायरेक्टली ओपनिंग दिस फाइल फ्रॉम द डाउनलोड्स, ठीक है। डाउनलोड्स में मैं जाऊंगा और मैंने यहाँ से NWC सेलेक्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप कोई Navisworks फाइल ओपन करेंगे, मेक श्योर दैट व्हाट कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप NWC सेलेक्ट करें, बिकॉज in the beginning, in the initial phase, we are supposed to open NWC files always, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 40 simulation model sample model is already there. I'm opening this model. Here we go, ठीक है। Okay, now model is with us. Okay, very good. This model is in a good condition, as I can see. Now, the second thing is we need to go to the home tab and find items. Window will open and pin करना है हमें, find items की window को pin करना है and sets and select manage sets. Okay, window will open, pin the window, refer image, category one column. Okay, so basically हमने यहाँ से ही open किया and then find items, then sets. Okay, then manage sets. All right. And we need to import this basically such sets XML file, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। दिस इज द होम टैब, ओके, एंड हियर वी हैव फाइंड आइटम्स। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से फाइंड आइटम्स को ओपन किया, ये हॉरिजॉन्टल विंडो नीचे अपीयर हुई। एक और है हमारे पास, वन मोर टैब इज सेट्स। सो आई विल डू मैनेज टैब्स, मैनेज सेट्स, ठीक है। मैनेज सेट्स को मैंने यहाँ पर ओपन किया और मैं इसको पिन कर दूंगा। तो ये ऑलरेडी पिन है यहाँ पर, ठीक है। अनपिन करूंगा तो इट विल बी इट विल डिसअपियर एंड विल बी देयर ऑन दिस साइड बार में रहेगा और मैं जैसे ही वहां पर कर्सर ओवर ओवर करूंगा तो ये वापस से ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है। मैंने कर्सर ओवर ओवर किया, ये ओपन हो गया। जैसे ही मैंने कर्सर हटाया इट विल डिसअपियर अगेन एंड इफ यू पिन दिस सो इट विल बी परमानेंटली देयर। ओके, सो फार सो गुड। नाउ हमको बेसिकली हमें यहाँ पर एक एक्सएमएल फाइल, आई थिंक एक्सएमएल फाइल भी हमें यहाँ पर, लेट मी सी, एक्सएमएल फाइल हमें यहाँ पर चाहिए होनी चाहिए। और हाँ, क्लिक ऑन बटन on the sets filter to save the set set and what is file and category column for the list. Okay, okay. I mean, as of now, we do not require any XML file or such set to import. Rather, what we do is ये sets वाली window हमने इसलिए open की because we have to create the search sets basically, right? Okay. Now this is my let me adjust this as well. This is my find items window. Here is this. Okay, find items. Now, cause category, in category we need to select what as per the. Okay, I think you are not able to see this. Let me share it again. Let me share the window itself. Sorry for that. Yeah, now it is visible to you, right? You can see my Revit window, Navisworks window, and then what I would say, the PPT as well. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। Let me repeat this whole process because screen was not visible.
मैं नेविसवर्क्स में गया था, मैंने नेविसवर्क्स ओपन किया और ये फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ओपन में जाकर मैंने इस फाइल को ओपन किया। ठीक है, ये फाइल का लिंक और जो मॉडल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई गिव यू देयर इटसेल्फ टू प्रैक्टिस फॉर यू गाइस। ठीक है, ये फाइल यहाँ पर है। दिस इज द होम टैब। होम टैब में हमारे पास वी हैव दिस बटन फाइंड आइटम्स। मैंने इसको ओपन किया। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस फाइंड आइटम्स, a horizontal window will be popped up in the bottom. ठीक है, and by the way this window I can adjust anywhere, on the left, on the top, okay, on the right, as per our need, the bottom। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको लेफ्ट माउस बटन को उठाना है और इसको ड्रैग करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर रहती है, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लेंगे इसको। ठीक है, सेकंड इज सेट्स। सिंस वी हैव टू क्रिएट सर्च सेट्स। ठीक है ना, सर्च सेट्स क्या होते हैं? सर्च सेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, ग्रुपिंग होती है एलिमेंट्स की। ठीक है, जैसे फाइल्स को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है ना, लेवल वन की फ्लोर को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज यू नो लेवल वन सेट। कॉलम्स को मैंने एक पर्टिकुलर लेवल के कॉलम्स को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज अनदर सेट। ठीक है ना, तो इसमें हम सेट्स की फॉर्म में बात करते हैं। सर्च सेट एक टर्मिनोलॉजी है which is predominantly used is being used in the context of Navisworks when we perform class detection, when we perform for dissemination, right? So यही है, यहाँ पर सेट्स का एक बटन है, मैंने सेट्स के बटन में गया एंड आई विल हिट मैनेज सेट्स। मैनेज सेट्स जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर ये विंडो वर्टिकली प्लेस हो जाती है। बाय डिफॉल्ट इनका कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि जो बड़ी विंडोज हैं आपकी वो हॉरिजॉन्टली नीचे अपीयर होती हैं, एंड देन जो छोटी हैं वो वर्टिकली लेफ्ट राइट में अरेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम लाइनर, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली क्योंकि ये बड़ी है, यहाँ पर हमें टाइम लाइन्स वगैरह डिफाइन करने होते हैं, शेड्यूल्स वगैरह। ठीक है, विल डिस्कस दिस एज वेल, बट अभी एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग। सो ये सेट्स है। यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर मैं इसको अनपिन करता हूँ तो ये ऐसे हाइड हो जाता है, एंड देन when I hover over my mouse on these sets, it will appear again when I remove my cursor from the sets, it will again disappear, right? So मैं इसको पिन कर लेता हूँ यहाँ से, so that it will be permanently here। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंटेशन क्या कहती है। वी नीड टू प्रोसीड एज पर द प्रेजेंटेशन। आई बिलीव प्रेजेंटेशन भी आपको दिख रही होगी। फाइंड आइटम्स हो गया, मैनेज सेट्स हो गया, पिन कर दिया हमने उसको। ठीक है, गो टू फाइंड आइटम्स। फाइंड आइटम्स में हमें जाना है कैटेगरी में, वी नीड टू सेलेक्ट कस्टम, ओके, एंड देन सेलेक्ट फाइल्स एज वैल्यू। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, लेट अस गो टू कैटेगरी and you need to select custom, okay, we have other categories as well। so मैं I do not want to go, I don't want यू पीपल टू कंफ्यूज हियर। ठीक है ना, अभी मैं आपको जस्ट बेसिक्स बता रहा हूँ यहाँ पर, सो डू नॉट वरी अबाउट कस्टम क्या होता है, दूसरी कैटेगरी क्यों नहीं सेलेक्ट किया। मैनी क्वेश्चंस विल बी कमिंग अप इन योर माइंड, बट माय डियर फ्रेंड्स, in the beginning you just understand how we should learn ABCD। we need to understand the basics। in the very first class we cannot ask, we're not supposed to ask कि सर मैं अपना नाम कैसे लिखूंगा, ABCD पढ़ा रहे हो आप तो। ठीक है ना, इट इज अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जब आप समझते हैं चीजों को, जब आप काम करने लग जाते हैं, देन ओनली यू अंडरस्टैंड कि क्या कस्टम होता है, अदर कैटेगरीज क्यों नहीं। सो फॉर दैट रीजन जस्ट स्टिक टू व्हाट आई एम टीचिंग हियर, ओके। प्रॉपर्टी इज देयर, एक्टिविटी आईडी। ठीक है, कंडीशन इज वी नीड टू इक्वल, वी नीड टू यूज इक्वल। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, वी आर पुटिंग सम फिल्टर ओवर हियर। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, मतलब फिल्टर यूज कर रहे हैं। ये पूरे बिल्डिंग में से मुझे कुछ पर्टिकुलर एक चीज सेलेक्ट करनी है, एक ग्रुप सेलेक्ट करना है, ताकि मैं वो सारे आइटम्स एक ग्रुप में डाल दूं। ठीक है ना, और जब मैं अपना 4D सिमुलेशन करूंगा तो उस टाइम पे मैं वो सेट्स जो होंगे मेरे, उनको मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा। ठीक है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। वैल्यू, वैल्यू में वी हैव दीज ऑप्शंस। ठीक है,
सो सबसे पहले लॉजिकल है कि जब कोई आप बिल्डिंग बनाएंगे उसका 4D सिमुलेशन बनाएंगे, तो 4D सिमुलेशन क्या होता है, दोज आर न्यू, उनके लिए मैं बता दूं, 4D सिमुलेशन इज नथिंग बट क्या होता है कि जब हम 3D मॉडल की प्रोग्रेस, 3D मॉडल की प्रोग्रेस क्या है, पहले फुटिंग होगी, फिर उसका स्लैब होगा, देन बेसमेंट बनेगा, उसके बाद लेवल 1 बनेगा, लेवल 2 बनेगा, लेवल 3 बनेगा, इस तरीके से वो प्रोग्रेस करेगा। तो दिस इज 3D मॉडल। और टाइम, हमारा शेड्यूल जो होता है, कितना टाइम पाइल्स में लगेगा, कितना टाइम लेवल 1 में लगेगा, कितना टाइम लेवल 2 में लगेगा, वो टाइम और मॉडल को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट विल बिकम अवर 4D सिमुलेशन। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फाइल्स का एक सेट बनाना है। ठीक है, मैंने फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैं ठिकाने लगा देता हूँ। फाइल्स को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड देन आई विल सिलेक्ट फ्रॉम हियर फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, फाइंड ऑल करो, तो ये यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका कोई रीजन है आई बिलीव। इज देयर एनी रीजन? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मे बी देयर कुड बी वन रीजन कि क्यों नहीं हो रहा है ये। तो हम एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। लेट मी ट्राई वंस अगेन with custom. Custom is there and we have activity ID, condition is equals, and here we need to select files. Okay, then why it is not selecting any object? uh, I think something is wrong here, something went wrong. Yes. So there was some glitch in the model. I have just, replaced that model. Let me show you. I think there was something went wrong within the model. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका मॉडल करेक्ट है और जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं वही मॉडल होना चाहिए। I think previous model, although when it, I mean physically the model is same, but there are times when model gets corrupted. So you need to understand that basically. So ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने मॉडल को दोबारा चेक किया है एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। क्योंकि वो जो वर्क फ्लो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इट वाज नॉट वर्किंग फॉर दैट। नाउ व्हाट वुड बी दी वर्क फ्लो? हमें क्या करना है, वी नीड टू सेलेक्ट कस्टम एंड देन एक्टिविटी आईडी इन प्रॉपर्टी, कंडीशन शुड बी इक्वल टू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेलेक्ट फाइल्स एंड वन बाय वन वी हैव टू सेलेक्ट ऑल दीज आइटम्स। ठीक है, लेट मी सेलेक्ट फाइल एंड देन आई गो फाइंड फर्स्ट, find next, and find all. So you can go find all in one go as well. I was just showing, if you want to see only one item, then the next item one by one, and if you want to select in one go, that is also one of the options. So we will go with the find items. So now if you see, all the piles are selected. Okay, all the piles are selected. Now I have to make a search set, a group of out of it. ठीक है ना, वो ग्रुप कौन सा है वो मुझे बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये देखिए, देर आर टू ऑप्शंस इन द सेट, सेव सेलेक्शन, सेव सर्च। सेव सिलेक्शन का मतलब है, सेव सिलेक्शन मतलब आप यहाँ पर करंटली यू कैन सेलेक्ट ऑल दीज सिलेक्शन, आप इसको सेव कर सकते हैं, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सेव सर्च, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं इस सर्च को, तो इट विल बी परमानेंटली हियर, it will become a search set for you. However, in case of save selection, it will not become a search set for you. तो दोनों में डिफरेंस ये है कि सेव सिलेक्शन को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, वो आपका इंटरनल यूज है, यहीं पर हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सेव सर्च करते हैं, तो ये आपका एक परमानेंट एक फाइल बन जाएगी, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वी विल गो विद सेव सर्च।
ये नाम हमें सेम वही देना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सेम नाम हमें यहाँ पर देना होगा, सेम. It is a case sensitive matter. Okay, so if one underscore piles is there, that means it should be same over here as well. सर सेट में भी सेम होना चाहिए. इसका यूसेज मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चलकर कि क्यों ये केस सेंसिटिव होना चाहिए. अगर ये केस सेंसिटिव नहीं होगा तो ये मैपिंग नहीं हो पाएगी और सिमुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज we need to select foundations. Find all. Foundations are selected. Okay. I'll go sets and then select other set. I will copy this name. Okay. Since this is case sensitive, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वहां पर लिखूं और वो मेरा रिजेक्ट हो जाए या बाद में काम ना करे. तो आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग हियर. नेक्स्ट वुड बी basement. Okay. I will I will select find all and then will save it. Okay. I will select the name, copy the name and rename the name. 3 would be basement. 4th will be my ramp. Okay, I will select find all. Ramp area will be selected. I will copy. I will go to sets and save it as a search. I will select the name, copy the name. I will rename this and then paste it. Ramp. Okay. Next, I'll go to 5th item, which is my slab, ground floor slab. I will select find all. Ground floor selected. I will go to sets. I will save it as a search set and I will select the name, copy the name, go to search set, rename it, paste the name, ground floor slab will be there. Similarly, I'll go to core walls. Okay, find all core walls will be selected. I will copy the name, paste the name. Okay, this is a long exercise. I'm not going to complete all. Right. So I have selected piles, foundation, basement, ramp, ground floor slab, core walls. Okay. If you notice here, if I go to piles, the piles will be selected. Foundations, foundation will be selected. ठीक है, तो ये एक परमानेंट एक रिपोजिटरी आपकी फाइल जनरेट हो गई है. इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दीज फाइल्स, जो कि हमारा जनरली होता है जब हम वर्क फ्लो आई मीन जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वी आर सपोज टू सम टाइम शेयर द डेटा. तो हम एक्सएमएल फाइल जनरेट करते हैं और ये हम सरसेट भेज देते हैं, ठीक है ना, दूसरों को, ताकि उसको फिर से टाइम इसमें ना लगाना पड़े. जो भी हमारा कोलीग है या फिर कोई हमारा क्लाइंट है या हमारा दूसरी टीम है, उनको अगर चेक करना है, बिम कंसल्टेंट है, राइट. So as a good practice, we basically invest time one time, not again and again. So we can create the search sets and then we can export these search sets. We can export from here. ठीक है, ये फाइनल एक XML फाइल जनरेट हो जाएगी, उसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो. That's it, right? So for the due to the paucity of the time, I'm not going to generate all the sets, but for the sake of understanding, मैंने 5-6 सेट्स यहाँ पर बना दिए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. और फाइंड आइटम्स में हम गए, वहां से हम सेट्स में गए और हमने यहाँ पर जाकर चीजों को सर्च किया, जो कि ये चीजें हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं. ये मॉडल के अंदर पहले से बना हुआ, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना. ये सारी चीजें आपके पास होंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म 4D सिमुलेशन. ये आपको मॉडलर देगा, मॉडल में होंगी, या फिर आपको एक प्लानर देगा, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ये मैं जस्ट आपको एक वर्क फ्लो बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम 4D सिमुलेशन करते हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको आपके कॉलीग्स देंगे, वो समझाएंगे, ठीक है. नाउ लेट अस गो टू दी अगेन पीपीटी. सो यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड. डू यू हैव एनी डाउट until here? So far so good, we can move further. Okay, so we have created the cell sets. Now the next thing is now Navisworks. We have already seen the Navisworks. Now let us go to the further. Download the CSV file from the group. Continue working on the same Navisworks file. Go to timeline data sources. Okay. Field selector and click OK. New data source. Okay. Rebuild the hierarchy. Switch to task. Select auto-attach using books. Now, this is a very important thing. Okay. You need to understand this. Stay focused. Right. Now, find items are done.
we are done with the find items. We can close it. And now we have to start our another thing, which is timeliner. Timeliner is again in the home button. We are in the home tab and you can go to the timeliner window. ठीक है, टाइमलाइनर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल विंडो फिर से नीचे आपकी अपीयर हो जाएगी. दिस इज द टाइमलाइनर. ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 4D स्केड्यूल फाइल जो कि हमारी डॉट CSV फाइल है, जो कि कुछ नहीं है. अगेन CSV इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एक्सेल फाइल. ठीक है ना, एक्सेल एक्सेल फाइल. समझ में आ गई. वो एक हमारा स्केड्यूल है. स्केड्यूल मतलब प्लानिंग इंजीनियर ने कोई स्केड्यूल दिया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कि फाइल्स हमारी 10 डेज में कंप्लीट होंगी, देन स्लैब कंप्लीट होगी नेक्स्ट 15 डेज में, रैम्प हमारा इतने दिन में कंप्लीट होगा, एंड देन विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली फ्रॉम बॉटम टू टॉप. राइट. सो इस तरीके से हमारी बिल्डिंग कंप्लीट होगी. तो उसका एक स्केड्यूल होता है जो कि प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है. एज अ बिम प्रोफेशनल यू जस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. ठीक है ना. प्राइमावेरा में भी हम बनाते हैं. प्राइमावेरा की फाइल भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. CSV फाइल भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक्सेल फाइल भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. मोर ओवर MSP फाइल भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो वो सब चीजें आपको ऑलरेडी दी जाएंगी. लेट मी शो यू दैट एज वेल. मैं आपको दिखाई देता हूँ. इट्स बेटर टू शो यू दैट फाइल. तो ये हमारी एक 4D स्केड्यूल की फाइल है. ठीक है ना. इस फाइल को मैं आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखा दूँ. इस तरीके से कुछ फाइल बनी हुई है. ठीक है, इसमें हमारे पास टास्क आईडी है, टास्क नेम है, ड्यूरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. फाइल्स 11 डेज में होंगी, फाउंडेशन हमारी 15 डेज में होगी, बेसमेंट 10 डेज में, रैम्प 10 डेज, ग्राउंड फ्लोर स्लैब 10 डेज. इस तरीके से ड्यूरेशन हैज बीन डिफाइंड. टास्क नेम इज देयर एंड वी हैव टास्क आईडीज. ओके. स्टार्ट डेट, finish date, 3D resources, delete. You are not worried about this. We are just worried about task name, duration, start, finish dates, task ID. This is our area of concern. So एक छोटी सी फाइल है, बहुत ही सिंपल फाइल है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी हैव केप्ट इट एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो इस तरीके की फाइल आपको दी जाएगी. इस फाइल को मुझे क्या करना है, और बेसिकली इट्स एक्सेल फाइल. ठीक है ना. इस फाइल को मुझे नाविसवर्क्स में इंटीग्रेट करना है और रिपोर्ट करना है. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. ठीक है. टाइमलाइनर में मैं गया. टाइमलाइनर में मुझे ये विंडो अपीयर हुई यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, एंड देन वी हैव टास्क, डेटा सोर्सेज, कॉन्फ़िगर, सिमुलेट. टास्क, अगर हमें कोई नया टास्क बनाना है यहाँ पर, उसका नाम हम बताएंगे, उसकी प्लान्ड स्टार्ट डेट बताएंगे, प्लान्ड एंड डेट बताएंगे, एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल एंड डेट. यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स यू नीड टू बी विजुअल हियर कि जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जानते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में. हावेवर जो लोग फ्रेशर्स हैं या जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी. तो डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ नहीं है. ये बेसिकली स्केड्यूलिंग का पार्ट है. ठीक है ना. यहाँ पर जब हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारी प्लानिंग कब है प्रोजेक्ट को शुरू करने की, यहाँ पर एंड डेट क्या है किसी एक एलिमेंट को या कंपोनेंट को खत्म करने की, एक्चुअल में वो डेट हमें फॉलो की या नहीं की, एक्चुअल में वो एंड डेट फॉलो हुई या नहीं हुई, टास्क टास्क टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन है, डेमोलिशन है, टेम्परेरी है. ठीक है ना. एट टाइम्स वी हैव सम डेमोलिशन वर्क एज वेल, टेम्परेरी वर्क एज वेल. अटैचमेंट मतलब हमें वो सर्च सेट यहाँ पर अटैच करने होंगे, टोटल कॉस्ट वगैरह अगर हमारी कोई कॉस्ट है तो. और यहाँ पर ये एक प्राइमावेरा के जैसे बार चार्ट, ठीक है ना, जिसको हम बार चार्ट कहते हैं या फिर हम कैन चार्ट कहते हैं, सॉरी, वो यहाँ पर बनता चला जाता है. ठीक है. इस तरीके से. सो दिस इज द मैनुअल मेथड. ठीक है. पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको मैनुअल मेथड नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको ऑटो अटैच मेथड बताता हूँ. ठीक है ना. डेटा सोर्सेज में हम जाएंगे, गो टू डेटा सोर्सेज एंड देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ ऐड. राइट. वी हैव MSP फाइल, MSP 2007 to 13, Primavera P6, P6 V7 V8 and so on so forth. CSV फाइल की मैं बात कर रहा था. तो we are gonna import CSV import. Okay. Now I have to give the directory. Alright. डायरेक्टरी मुझे इसको देना है कि भाई कहाँ पर फाइल पड़ी हुई है. ठीक है. सो here is the file 4D plus schedule. ये फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है ना. Now this is the very important part, the mapping of the things.
हमें मैप करना है, ठीक है ना। डिस्प्ले आईडी में टास्क नेम में हमें टास्क नेम ही लिखना है। ये सारी चीजें कहाँ से आई आप पूछेंगे। ये जो ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल फील्ड नेम में, ये कॉलम नेम है, ठीक है ना। ये कॉलम नेम और एक्सटर्नल फील्ड नेम आपके पास कहाँ से आए, तो मैं कहूंगा कि जो एक्सेल शीट मैंने इंपोर्ट की है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, स्टार्ट, फिनिश, 3D रिसोर्सेज, डिलीट, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें हमारे पास थी वहां पर। तो टास्क नेम के सामने मैंने टास्क नेम ही रखा। डिस्प्ले आईडी नथिंग, टास्क टाइप नथिंग। सिंक्रोनाइजेशन आईडी, सिंक्रोनाइज कैसे करना है, उसको कैसे पता चलेगा ये वाला आइटम ये है, तो उसके लिए टास्क आईडी मैंने उसके सामने दिया है, ठीक है। प्लान स्टार्ट डेट स्टार्ट, प्लान एंड डेट फिनिश, दीज आर द फोर थिंग्स आई नीड टू मैप, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ और मैप नहीं करना है एज ऑफ नाउ। जस्ट फोकस ऑन दीज फोर आइटम्स। टास्क नेम के सामने टास्क नेम, डिस्प्ले आईडी एम्प्टी, टास्क टाइप एम्प्टी, सिंक्रोनाइजेशन आईडी टास्क आईडी, प्लान स्टार्ट एंड, ठीक है। मैं I'll press OK. Okay. The moment I'll press OK, it will import the data. इसने यहाँ पर import कर दिया, but we need to right click on this and right click on this, and then we have to rebuild the hierarchy. That means refreshing. We are refreshing it. जैसे ही हमने rebuild किया hierarchy को, ठीक है, I'll go to task again and I'll see कि देखिए सारे जितने भी हमारे एक्सेल फाइल थी वो यहाँ पर import हो गई है। आप देख रहे हैं, रूफ 15 तक, कॉलम्स, फाइल्स एंड ऑल, एवरीथिंग हैज बीन इम्पोर्टेड, ठीक है। यहाँ पर ऑटो अटैच हो गया, हमने डेटा को ऑटो अटैच किया। देयर आर टू मेथड्स, एक तो हम मैनुअली ऐड टास्क करें और यहीं पर बनाएं, ठीक है ना, पूरा शेड्यूल हम यहाँ बनाएं। दूसरा ऑप्शन एज ए बिम प्रोफेशनल हमारे पास ये होता है कि हमें कोई प्लानिंग इंजीनियर अपना स्केड्यूल शेयर कर देता है। जनरली यही होता है। ओडी स्पेशलिस्ट और या बिम स्पेशलिस्ट की जॉब ये होती है कि उसको डेटा दिया जाता है, 3D मॉडल दे देते हैं, एंड he or she has does have this he does has this planning schedule as well। तो दोनों को इंटीग्रेट करना, दोनों को मैप करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द बिम स्पेशलिस्ट और 4D स्पेशलिस्ट, राइट। तो दोनों मेथड हमें पता होनी चाहिए। अभी आई एम फोकसिंग ऑन द ऑटो अटैच मेथड। तो हमने डेटा यहाँ पर अटैच कर लिया, राइट। हमने हायरार्की बिल्ड कर ली, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, लेट मी टाइमलाइनर डेटा सोर्सेस CSV import। okay, field selector, we have selected the fields, new data source, rebuild the hierarchy, switch to task, auto attach using tools. Yes, now we need to go to task again. We need to go to the task, and we have this auto attach, using rules, this tab. Now we have to select this tab, and then we have three options: map timeliner task from column name to selection sets with the same name, ठीक है। map timeliner task from column name to items with the same name, place with the same name. So we need to select this second option, ठीक है, because we have task from columns, ठीक है ना। timeliner task from column name to selection sets, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन, ये दीज आर दी सिलेक्शन सेट्स, ठीक है। पाइल वन, वन पाइल टू, फाउंडेशन, थ्री बेसमेंट, फोर, इनको मैप कराना है किसके साथ, कॉलम्स नेम्स के साथ, ठीक है। कॉलम नेम हमारे पास क्या है, ये है, दिस इज द नेम, पाइल्स, फाउंडेशन, बेसमेंट, दिस एंड ऑल, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉलम नेम, ठीक है, और ये सिलेक्शन सेट है, इन दोनों को आपस में मैप कराना है। दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग नाविस्फिक्स, अप्लाई रूल्स, ठीक है। अप्लाई रूल कर देना है, इसको बंद कर देना है, राइट। दैट मीन्स वी हैव अप्लाई द रूल्स। नाउ इफ यू सी, apply rules and all, now we need to go to PPT again. Window will open, select the second option and clear. This is to auto attach the activity in the schedule to the subset, ठीक है। Now this is the workflow. First of all, we have we have selected the field selectors, and then we have built the hierarchy, and then again we went to the you know we went to the auto attach using rules,
We have selected this second option and then we have seen sets will be selected, right? See, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया है, if you have noticed, I'll show you again. This step is very important. So what I'm gonna do is मैं डेटा सोर्सेस में जाके इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? मैंने डेटा सोर्स को डिलीट कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें भी यहाँ से अभी डिलीट नहीं हुई है, बट मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आई थिंक ओके, नोट अ बिग डील, मैं इसको डिलीट टास्क नहीं करना मुझे। शुड आई डू, कैन आई गो बैक, कंट्रोल जेड कर सकता हूँ क्या मैं? Yes, this is the control that, right? So if you see, I have just imported. That means data has imported. ठीक है, हायरार्की रिबिल्ड हो गई है, ठीक है। एंड टास्क में मैं गया और अभी हमारे पास इफ यू सी अटैच आइटम इज जीरो, वी डू नॉट हैव एनी अटैच्ड आइटम ओवर हियर, ठीक है। बट जब मैं ऑटो अटैच यूजिंग रूल्स करूंगा करूंगा तो मेरे पास ये जो आइटम्स है, सेट्स जो है वो ऑटो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, अप्लाई रूल्स किए, ठीक है, इसको मैंने बंद किया एंड देन आई विल सी कि ये सेट्स मेरे पास ऑटोमेटिकली अटैच हो गए। नाउ यू विल आस्क कि सर हमारे पास आइटम्स है 15, टास्क है 15, बट अटैच आइटम्स है ओनली 6, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6। दिस इज बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिर्फ 6 सेट्स बनाए, ठीक है। और अभी हमने जस्ट नाउ हमने उसको ये बोला था कि भैया सेकंड ऑप्शन के हिसाब से हमारे जितने भी कॉलम नेम है उनको सिलेक्शन सेट्स के साथ से मैप करा दो, ठीक है ना। दिस वाज द ऑप्शन वी हैव सेलेक्टेड। तो उसने क्या किया, जितने भी सिलेक्शन सेट्स थे आपके सर्च सेट्स थे उनको कॉलम के नेम के साथ मैच करा दिया। अगर आपके पास पूरे होते तो वो पूरे करा देता, अगर आपके पास कम है तो वो कम कराएगा। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस सी देम ऑल। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टास्क टाइप आपको बताना है। कंस्ट्रक्शन है, अगर आपकी न्यू बिल्डिंग है तो आपको कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका डेमोलिशन है तो डेमोलिशन सेलेक्ट करना है। इन दिस केस आई वांट टू शो यू कि 4D सिमुलेशन होता क्या है, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज द थिंग ऑन। नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमारा सिमुलेशन रेडी है, हम सिमुलेशन को देख सकते हैं, ठीक है। आई प्ले द सिमुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू। होल्ड ऑन, होल्ड योर horses एंड टाइटन योर बैक सीट बैक। तो सिमुलेशन देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो मॉडल है ये होम होम पेज में होना चाहिए, आई मीन दी आइसोमेट्रिक व्यू होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ आई विल गो टू सिमुलेट, ठीक है। जैसे मैं सिमुलेट में जाऊंगा वी हैव सर्टेन ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है। प्ले का बटन है यहाँ पर और ये कुछ मुझे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीनिश, दैट मीन्स मेरा कुछ बना है। वो कितना बना है दैट आई हैव टू सी। मैंने प्ले बटन यहाँ से प्रेस किया तो मुझे कुछ सिमुलेशन दिख रहा है बिल्डिंग का। पहले पाइल्स बनी, उसके बाद, ठीक है, दिस इज नोन एज सिमुलेशन। आपका टाइम यहाँ पर अपीयर हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर टाइम अपीयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बिल्डिंग की प्रोग्रेस आ रही है। फिर से मैं प्ले करता हूँ, अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए आप। देखिए यहाँ पर वीक 2, इफ अगर हम बात करें वीक 4 की, आफ्टर डे 27 इतनी प्रोग्रेस आपकी हो गई होगी, ठीक है ना। अगर हम और टेक्निकली थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, तो ये फाउंडेशन का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा और ये आपका टाइम ड्यूरेशन है, गैंट चार्ट है। यहाँ पर आपका लाइव टाइम चल रहा है और ये आपका मॉडल प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है।
अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स क्या प्रोग्रेस होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स हमारी प्रोग्रेस ये होगी कि वी वुड हैव कंप्लीटेड रैम, फाइल्स, फाउंडेशन एंड देन वी विल बी कास्टिंग 4 वॉल्स। ये हमारी चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो दिस इज हाउ वी ट्रैक द प्रोग्रेस, वेदर वी आर लैगिंग। अब ये हमारा एक्चुअल में जो स्केड्यूल है उससे वी कैन कंपेयर कि ये हमारा एक्चुअल है या फिर प्लान्ड है। Planned is always different from actual, क्योंकि there are various risks at the site, various unforeseen reasons. So हमारा कभी भी जो प्लान होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, मतलब आई मीन कभी भी इन द सेंस मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वी आर ऑलवेज लैगिंग और इधर बिहाइंड, लैगिंग और गोइंग अहेड। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वी आर ऑन द टाइम और या फिर हम फास्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगेन इन डबल कोट्स, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि मैंने बाहर तो काम किया नहीं, तो मैं एग्जैक्टली बता सकता। मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर delayed. This is the 4D simulation using auto attach rules. Now we'll go back. I think let me stop sharing and then recording as well, and I'll be recording the another session. Okay.